Well, you're watching the live telecast on Doordarshan from Panjim, Goa, as we celebrate the 50th edition of the International Film Festival of India. And joining me now in the studios is the showman himself, the master storyteller. Please welcome eminent writer, producer, and director, Mr. Subhash Ghai. Subhash ji, namaskar. Namaskar. Subhash ji, I'd like to begin by congratulating you because we are congratulating IFFI for 50 years, and even you have completed 5 decades in Indian cinema now. Yes, practically, if I say, my career started in 1970. You see, I passed out in 1965 from FTI as an actor, but from 66 to 70 was practically struggling and trying to find out my foothold, where I should be, whether I should be actor or writer or somewhere or not. So those 4 years of my unemployment and looking for the job was a great experience for me. So I would like to tell all the strugglers here, or all the people who would like to join the profession, remember that the struggle period is your ultimate institute, because where you come to know that how you have to be a market friendly, you have to create a network, and if you're good at job, and you have to discover yourself where you are good at, and with the change of time, you should rediscover also yourself. Absolutely. And that's how my journey became in 1970, 1968, I would say, as an actor. From 68 to 73 I was an actor, and 73 I became a writer, and 75 I became director from a film called Kali Charan. So before I ask you more about Shatrughan starrer Kali Charan, which is again one of my favorite, as an actor you starred in Aradhana in 69? You know, first I started in 1967. I think picture was Takdeer. Takdeer. वो जब याद आए बहुत याद आए अच्छा. song, you see. That was Rashtriya Productions, and then I got a role in Aradhana, a small role. Okay. And I was selected by the United Producer Talent Contest Filmfare in 1966, along with the Rajesh Khanna that time. And I had a good position as a topper in acting, but I was too young to understand what is where I'm going to land. Yes. Because I did not belong to any film industry family. You see, I did not know even the PN, even the accountant of a film industry. Okay. So I had to create and pay my way. So in your family, you were the first one who was entering cinema. My father was a doctor in Delhi. My mother was a teacher. Right. You see. So I came from Delhi and went to Pune Institute for 2 years, and then came to Bombay. So Bombay was new for me, as well as the people and the industry, and so I had to create my own path of networking and how I went to the struggle. But those 4 years struggles really paid me throughout my life. That made me more wiser. Yes. Because when you're schooling or educating yourself and graduating yourself, your dreams go stronger and your opinions go stronger. So you have a one-sided opinion. But when you struggle, then you have other perspective also. So you understand that how your opinions or convictions or perceptions are so different than the market itself, than the people itself. And that is a great learning for any newcomer. And after graduating, that you have to understand what is the present market at the moment, and what are the demands they look forward from you. Yes, absolutely. So of course, Aradhana is also one of the films that will be screened here at IFFI 2019 on the 27th of November. And as you watch Rajesh Khanna, Sharmila Tagore starrer, watch out where you can find the actor Subhash Ghai as well. Yeah, I had a very small role, and I remember that small role also gave me a big opportunity. Then I got a bigger role in Umang, and from Umang I got lead roles. Then I played lead roles in 6 films that time. Really? Yeah. Okay. Yes, Wow. there were so many. But the big recognition came as writer and director for Kali Charan. That's right. So do you think, since you were a good writer, you became a good director? And usually we see sometimes somebody writes 20-30 films, then makes a transition to become a director. You see, the writing was my very inherent quality right from my school days. So when I was in university, I used to write plays, stories, and direct theatre plays and act also in that. So storytelling has been always my first love, because since my childhood I used to read Gita and Mahabharata, and I could see the stories behind it, and those stories used to interest me a lot. I would love to see the combinations of those characters,
written by great writers like Vyasa and like Valmiki and like those people. And I was wonder how they play with the human nature and the psychology of characters and the philosophy of life. Yes. So I learned the philosophy of life as well as the psychology of the characters. Okay. What is the villain, what is the Nayak, what is the Khalnayak, what is protagonist, what is catalyst. Okay. So that interest was there in me. And so when I was working as an actor, then I realized that we need better stories, you see. Then I started telling stories to my colleagues, and then it went to the producer and the top producer like Prakash Mehra and other thing. They engaged me. When they heard my stories, they immediately bought. Yes. And I sold some 6 stories to the 6 top producers. Okay. And then 7th story was a Kali Charan. Right. Then the producers asked me, you narrate, and I narrated my story with the full script from first to the last frame. Then he said, why don't you direct the way you tell? Because I performed a story. You see, when I tell a story, I perform. ये हुआ, इस character ने कहा, फिर ऐसा कहा. So the acting talent also helped me a lot to write characters as well as perform while narrating the story. And how you create this Loyan and number 17, it was quite a good Yes, scene. you see, that's why it's play is what? It's about a riddle. Yes. You play riddles and you solve it and unsolve it and put questions again, put blocks, twists and turns, and you make a story. Yes. You get ideas, but you have to be interested in making a play, creating a play. Yes. If you look at the Mahabharata, you look at our bigger play, So they are so much interesting, the classicals, because they have been for the centuries. Yes. And every child is interested in knowing Mahabharata. Yes. Say Ramayana or all that. Yes. Because those are based on a human interactions permanently. Yes. Technology may come and go, science may come and go, Yes. things may come. What will not go is the human interaction with each other. The childhood, the youth, Yes. old age and death. Yes. These are permanent in Yes. everyone's life. Yes. So we all grow from the age. Yes. So that is the बालावस्था, वानावस्था, युवावस्था, क्या क्या है वो सब समझना पड़ता है. तो आज भी मैं भक्त ऑफ कालिदास, मैं महाकाव्य जो हैं वो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और बच्चों को भी समझाता हूँ कि अगर आपको नाटक समझना है तो नाट्य शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वो इतना खूबसूरत शास्त्र मनु जी ने लिखा है, इसमें डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग सब आता है और वो कल्चरल वैल्यूज़ उसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर बताने का जो तरीका है वो अमेजिंग है. स्टोरीज आप भले पक्षी की और एक डॉग की बताओ, लेकिन अगर पक्षी और डॉग की भी कहानी है तो इतने रोचक तरीके से होनी चाहिए कि वो लगे कि यार ये क्या कहानी है. तो ये नेचुरल टैलेंट है या फिर जैसे आपका भी विस्लिंग वुड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये सिखाया भी जा सकता है? ये सिखाया भी जा सकता है क्योंकि मार्गदर्शन तो देना पड़ता है, लेकिन उसमें फिर उसके बाद टैलेंट होता है. देखिए हर साइंस, हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट निकलते हैं. अच्छा. अपने प्रोफेशन में कुछ नहीं निकल पाते. ठीक है. जो ब्रिलियंट निकलते हैं वो कौन होते हैं? जो उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए करते हैं, कुछ लोग उसको समझने की जब कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. सो मैं अपने विस्लिंग वुड के स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि ट्राई टू स्टडी, डोंट रीड इट, ट्राइंग टू लुक एट द थिंग्स बियॉन्ड द ऑब्वियस. अगर आप बियॉन्ड द ऑब्वियस लगे तो यू विल एक्सप्लोर. डोंट बी बिलीवर, बी ए सीकर, बी एक्सप्लोर. अगर किसी ने कहा ए फॉर एप्पल तो एप्पल के सिवा एरोप्लेन भी हो सकता है, आंटी भी हो सकती है. सो जब आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं सेम चीज़ को, तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. और वो एक क्वालिटी आपके अंदर परमानेंटली होनी चाहिए. हर सुबह उठ के आपको एक सवाल यूनिवर्स से करना चाहिए, सूरज के देख के करना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. भले आप 70 साल के हो जाएं, ये नहीं कि वो बच्चा जो 7 साल से 14 साल का वही पूछता है टेल मी वाई. टेल मी वाई इज़ ए क्वेश्चन विच यू शुड ऑलवेज कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 75 और 80, टिल यू आर रियली गॉन. क्योंकि टेल मी वाई एंड टेल मी हाउ, इवन टुडे आई एम ए स्टूडेंट, इवन टुडे आई वांट टू डिस्कवर कि आप दूरदर्शन में बैठ के कैसे रिले कर रहे हैं, इसमें 3-4 कैमरे हैं, अब कॉन्टिन्यूसली क्या प्रेशर है आपके ऊपर, ऑडियंस कैसे पसंद कर रही है. तो यहाँ पर भी मैं लर्न कर रहा हूँ. सो यू लर्न विद द प्रेजेंट, यू हैव ए नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम द पास्ट, एंड यू आर एक्सप्लोरर फॉर द फ्यूचर. So I have 2 tell me why and 2 tell me how questions. Now we've enjoyed your films where you directed, whether it was Yaadein, Taal, Pardes, Khalnayak. But over the last decade, tell me why you have not directed too many films. You see, my career has been divided in 2 parts. The first 25 years, 30 years, I was a writer, director, and out of 19 movies, I gave 14 blockbusters. Yes. So that was a quite successful story. Yes, congratulations. So once I felt that I had a success enough, because one director cannot make more than 15 movies in his life. Okay. And good standard movies.
So I knew that I'm aging now. What should be my next step? Next step is that I should share my experience, my knowledge, my money to the younger generation. Yes. So I started a company, corporate company, Mukta Arts, Yes. under which we set up a Whistling Woods Yes. International, a film school Yes. for the younger generation, Yes. where all the students and aspirants from all over the states should come on one platform Okay. in Bombay, Okay. and they should connect with the industry. Okay. So I bring the whole industry on the campus of Whistling Woods. Okay. So they teach and they connect. So there is a connection. I create a network and a connection between the industry and the students Okay. over there. Okay. And I feel I am more proud of having a Whistling Woods and Okay. being an educationist than a Yes. filmmaker. Yes. पहले मैं फिल्में बनाना था, आजकल मैं फिल्म मेकर्स बनाता हूँ. So I was making films, now I'm making filmmakers. Very nice. So इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है ऊपर वाली की. So, आपने जैसे बताया FTI पुणे से आपने सिनेमा में ग्रेजुएट किया था. जी. उसके अलावा आपने पहले ग्रेजुएशन कॉमर्स में भी की थी. जी हाँ. तो आज जब हम कहते हैं BCom, BA, BSc, इसके अलावा क्या सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के लिए, फिल्म मेकर बनने के लिए भी कोर्सेज हैं, ताकि मैं 10वीं 12वीं के बाद सीधा वो कोर्स करूं? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ इवन सरकार से या स्कूल से या इंस्टीट्यूट से या प्रिंसिपल से कि जो कला है इसी ये आपकी 5वीं क्लास से ही शुरू होनी चाहिए. राइट. आप भले साइंटिस्ट बनना चाहें, लॉयर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, लेकिन 5th स्टैंडर्ड से आपको कलात्मक दृष्टि से जितने भी कोर्सेज हैं, लिबरल आर्ट्स के या थिएटर के या ड्रामा के या 5th वेदा के, चिल्ड्रन मस्ट नो अबाउट इट. ये स्टडी और रेगुलर कोर्सेज में आना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ. Okay. ताकि वो जब हायर सेकेंडरी पास करे उसके बाद ही विल बी मच मोर कैपेबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चुनना है. Yes. इवन वो डॉक्टर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, बट इफ इज एन आर्टिस्ट साइंटिस्ट Yes. इज डिफरेंट, Yes. आर्टिस्ट डायरेक्टर इज डिफरेंट, आर्टिस्ट लॉयर इज डिफरेंट. ओके. आप देखिए, एक डॉक्टर होता है बड़ा रूखा सा होता है, ओके. एक दूसरा डॉक्टर होता है बड़ा कंपैशनेट होता है. यस. वो अपने जब क्लाइंट से बात, पेशेंट से बात करते हो, पेशेंट आधा ठीक हो जाता है, बिकॉज उसको कला आती है कि किस तरह से बात करना है अपने पेशेंट से. तो कोई कला का मतलब खाली डांस, ड्रामा, म्यूजिक नहीं कि आप खाली अपने शाहरुख खान बनना है या अपने करीना कपूर बनना है. अगर आप ज़िंदगी में दूसरे भी प्रोफेशन करेंगे तो भी वो चीज़ काम आएगी. आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि अमेरिका जब मैं जाता हूँ और आप देखिए वहाँ पर गली गली में एक्टिंग स्कूल है. अच्छा. और उस एक्टिंग स्कूल में लॉयर्स स्टूडेंट हैं, अच्छा. जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन है, वो एक्टिंग सीखने आते हैं. अच्छा. तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्टर बनने? बोले नहीं जी, एक्टर नहीं बनने, हम लॉयर हैं. पर क्या सीखने आते हैं? बोले हम सीखने आते हैं कि दूसरे से बात कैसे की जाती है, अच्छा. हम कैसे परफॉर्म करें जिस वक्त कि हमारे सामने चुनौती आए या मुश्किल हो, हम दूसरे के दृष्टिकोण से भी देख सकें. एक गरीब आदमी क्या सोचता है, तो मैं गरीब आदमी का रोल करूँगा यहाँ पर एक्टिंग में, तो मैं गरीब आदमी की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. नहीं तो मैं डॉक्टर ही बना रहूँगा, बिल्कुल ठीक है. मेरा स्वाभिमान ही मेरे को खाता रहेगा. बिल्कुल ठीक है. तो मैं दूसरे का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव समझने के लिए एक्टिंग सीखता हूँ. अब ये कितनी बड़ी बात है, ये हम लोग नहीं सोचते हैं. इसलिए ये शिक्षा प्रणाली में डालना चाहिए, ये जो कलात्मक दृष्टि से शिक्षा है जो उनकी, ताकि हमें व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता है आज हमारे देश को. बाकी निर्माण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब तक आने वाली जो आज बच्चा पैदा होता है वो 2050 में कैसा होगा, 30 साल में उसको नौकरी का क्या सामना करना पड़ेगा, क्या चुनौतियाँ होंगी, जी. क्या वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो हर सिचुएशन को काबू में ले सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, लेकिन वो बनाई किसने है? इंटेलिजेंस ने बनाई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाई है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कौन सी इंटेलिजेंस मेरे बच्चों को चाहिए कि इसको भी कंट्रोल में रखें, नहीं तो वो कंट्रोल में करेगा, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा. सो टुडे हमें विवेक की आवश्यकता है. नॉलेज से भी ज़्यादा, इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा जो अभी शिक्षा में चाहिए वो है विवेक, पर विजडम, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. पर सुभाष जी, क्योंकि कला के क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा अनिश्चितता है, और अगर मान लो आप कला की परिवार से नहीं है, जैसे आपका भी केस था, तो आप अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें? पहले मुझे बताइए कला क्या है. कला दो तरीके से कला है. एक, आप कलाकार बनना चाहते हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म, राइट. ठीक है. ये आपने चुना, ये रास्ता अलग है. ठीक है. एक है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है. लेकिन मैं एक ग्रेट डॉक्टर बनना चाहता हूँ. मैं साइंटिस्ट में ग्रेट डॉक्टर से ठीक है. जो वो कला मेरे में आनी चाहिए जिससे मैं कि हर चीज़ को एक बड़े आध्यात्मिक रूप से देखता हूँ. और वो साइंस से मैं चंद्रयान में जाना चाहता हूँ. तो मेरा कनेक्शन अगर चंद्रयान में जाने का है और मेरे में वो कला है चीज़ को समझने की, साउंड को सुनने की, दृश्य को देखने की, टेक्स्ट को पढ़ने की, ये भी एक कला है. तो इसका मतलब कला सबके लिए है? कला सबके लिए.
कारीगर के लिए भी एक कला है। अगर कारीगर भी कलाकार नहीं है तो उसका टेबल जो है इतने प्राइस में नहीं बिकेगा। डिज़ाइनर टेबल बोलते हैं, डिज़ाइनर खाना बोलते हैं, है ना, डिज़ाइनर कपड़े बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो डिज़ाइनर कौन है? कलाकार है। कला हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। ये जो आपका अभी तक चल रहा था कि भाई सिर्फ इसको एक फॉर्मेट दे दो, इन्फॉर्मेशन में ये कोर्स बना दो, ये कोर्स में इसको एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम में इसको डिग्री दे दो, वो अब नहीं चलेगा। वो नहीं, वो ख़त्म हो गया है, वो पुराना ज़माना था। अभी आपको कलाकार बना समझने के लिए साथ को उसको एक बड़े एंटरटेनिंग, स्वाभाविक, आध्यात्मिक, समझदार, विवेक से रूप से देखना पड़ेगा। तो जो जैसे अब आप विवेक या अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये शुरू से सुभाष जी ऐसे थे जब 70 से आए, या फिर ये दशक दर दशक परिवर्तन आया? शुरू से मैं ऐसा था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि साहब कोई भी चीज़ देखो तो उसको ऑब्वियस से दूर देखो, जो नज़र आ रही है उसके पीछे क्या है। अच्छा, डोंट बी बिलीवर, बी ए सीकर। तो ये जो क्वालिटी अगर आप बच्चों में डेवलप करते हैं कि ये चीज़ क्यों और ये चीज़ और कैसे अच्छी हो सकती है, इसको मैं अलग दृष्टिकोण से कैसे देख सकता हूँ, इसी नहीं तो क्या होगा, जो पढ़ा है वही पढ़ा है और बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। तो हम मध्यवर्ती और ऑर्डिनरी और कॉमन मैन बन के रह गए। तो आपको क्या लगता है कब था? कालीचरण के बाद था, कर्ज के बाद, हीरो के बाद, मेरी जंग, कर्मा, कब था कि द शोमैन का तमगा सुभाष घई के साथ जुड़ गया? क्योंकि इससे पहले राज कपूर साहब के लिए द शोमैन जुड़ता था। इसी ये तगमे तो मीडिया और टाइटल मिलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल कीजिए और जो चैलेंजेस आप अपने दिमाग में लेके आते हैं उनको आप टैकल कीजिए। कालीचरण विश्वनाथ मैंने एक क्राइम थ्रिलर पिक्चर बनाई। ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि आप पिक्चरें अच्छी बनाते हैं लेकिन आपका पिक्चर में म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं होता है जी। मैंने फिर कर्ज बनाई, फिर म्यूज़िक ही म्यूज़िक आया। बोले आप म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन एक लार्जर ऑफ लाइफ जरा फिल्म जो है नहीं होती, मैंने विधाता बना दी। मैंने बोला ये लो लार्जर ऑफ लाइफ। दिलीप कुमार साहब। फिर कहना नहीं आप स्टार कास्ट के साथ काम करते हैं, न्यू कमर के साथ अपनी फिल्म नहीं बनाई। मैंने हीरो बना दी जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित के साथ। और क्या गाने। फिर उसने बोला कि साहब आप फ्लूट बजाते हैं, हीरो बनाते हैं लेकिन एक मज़ेदार का एक्शन फिल्म नहीं बनाई। मैं बोला कर्मा बना देते हैं। फिर बोले एक्शन फिल्म नहीं बनाई तो बोले और एपिकल फिल्म चाहिए, तो हमने बोला आप सौदागर दे देते हैं। फिर वाला फिर हमने खलनायक दे दी। बोले जी अब ये तो आप क्राइम की फिल्में बनाते हैं सुभाष जी, अभी आपने कभी हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं देखा आपकी पिक्चर। हमने बोला परदेश, ताल और यादें 3 पिक्चरें बना दी, वुमेन के ऊपर बना दी और वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन की सोल के ऊपर बनाई। वुमेन की बॉडी के ऊपर फिल्म नहीं बनाई मैंने वुमेन को जब भी फिल्म बनाया उसकी सोल, उसकी विद इन स्पिरिट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो तीनों फिल्मों में आपको मिलेगी, परदेश में, ताल में और यादें में। तो अब लोग क्या कह रहे हैं सुभाष जी इस पे फिल्म नहीं बना? अभी तो सुभाष जी ये पूछते हैं कि आप फिल्में क्यों नहीं बनाते, हम राम लखन क्यों नहीं देते, हमको कर्ज क्यों नहीं देते, सौदागर क्यों नहीं देते। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो सुनील गावस्कर को भी आप कह सकते हैं कि वापस क्रिकेट खेलो। वेल बताओ, तो जो मेरी अवस्था है उसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आजकल मैं सोशल कॉजेज़ की फिल्में बना रहा हूँ। मैंने एक छोटी फिल्म बनाई आधे घंटे की गांधी के ऊपर। गांधी ए पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण आधे घंटे की, कि गांधी के बारे में लोगों के क्या क्या दृष्टिकोण हैं, उसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। सोशल कॉजेज़ पे बनाता हूँ और स्टूडेंट के साथ मैं छोटे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। बात तो खुशी की है ना, मुझे आपकी डिमांड से थोड़ी लेना देना है। मैंने मार्केट की कभी मैंने परवाह भी नहीं की। मुझे क्या बनाना है, मैं किसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसको एक्सेल करके बड़े प्यार से, ध्यान से उसको बनाता चला जाता हूँ। क्या अब आप वेब सीरीज का भी भविष्य बहुत उज्जवल देखते हैं? जी हाँ। आपको लगता है 2020 में डिजिटल प्लेटफॉर्म? जी, अभी OTT एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द रियलिटी। ओके। और यही हमारा फ्यूचर है। अच्छा। इसी सिनेमा भी जो है उसका प्रभाव जो है इसके ऊपर आएगा और आया भी है। अच्छा। तो अगर आपको नाट्यशास्त्र की पूर्ण तरीके से अगर आपको ज्ञान है और उसका टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो 2 मिनट की फिल्म हो या 200 मिनट की फिल्म हो या OTT हो या वेब सीरीज़ हो या नेटफ्लिक्स हो, आपने एक कहानी बतानी है, एक विषय बताना है। आपके विषय बताने का तरीका बड़ा मज़ेदार है। पर उसमें चैलेंज नहीं है सुभाष जी? जब मैंने 10 एपिसोड बनाने हैं मान लो नेटफ्लिक्स के लिए, OTT के लिए, तो हर एपिसोड को एक हाई पे छोड़ना है कि आप दूसरा एपिसोड भी देखें। तो हर एक का व्याकरण होता है, फिल्मों का भी तो व्याकरण होता है। एक नायक है, एक दुष्नायक है, एक विलन है, एक विलन के बिना कहानी नहीं बन सकती, विदूषक तो चाहिए। तो इसका भी फॉर्मेट आप लगाएगा। 10 सीरीज तो 10 सीरीज में बनाइए। और जैसे सिनेमा में सेंसर बोर्ड है या फिर फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल है, क्या वहाँ भी रेगुलेशन होनी चाहिए? वो रेगुलेटरी बॉडीज तो होनी ही चाहिए। अच्छा। अगर आपने सड़क के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाया तो देखिए गाड़ी नहीं चल सकती। हर जगह रेगुलेटरी बोर्ड तो होना ही चाहिए। जब अति हो जाती है वहाँ कहीं जहाँ भीड़ हो जाती है वहाँ पुलिस तो बुलाते ही है ना कि जाम हो गया। अभी जहाँ भी कुछ सामाजिक त्रुटियाँ हों वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज आनी ही चाहिए। जी सुभाष जी, आपने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुई। सबसे
बढ़िया क्या लगा, क्या हाईलाइट लगी आपको ओपनिंग सेरेमनी की? उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा जो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने एक दूसरे से बात की, वो ये लगा कि मुझे लगा ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। तो और अमिताभ जी बोल रहे हैं कि मैं देखिए रजनी साहब से बातें होती रहती हैं, रात को मेरी कभी कभी मैं इनको कुछ बात सुझाव देता हूँ तो ये हम मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, ये मुझे सुझाव देते हैं मैं मानता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। जी। तो एक विविधता में भी एक एकता है, दोनों में दोस्ती भी रही है लेकिन भले भी उनके विचार विभिन्न अलग अलग हों और उसमें भी एक यूनिटी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Absolutely, as somebody said that cinema unites and therefore let's continue to have the feeling of peace, harmony, unity in diversity through cinema. Yes. Subhash Ghai, the showman, the master storyteller, thank you so much for My joining us pleasure. today. My Thank you very pleasure much. to all of you. Thank Love you all.